آج جگہ جگہ آپ کو پیر ملیں گے اور آپ ہو بہت سادہ ذہن کے کہ جس کا دامن چاہ جو سامنے آیا اس کا دامن پکڑ کر کے آپ بیٹھ گئے، جو بھی چٹک مٹک کے جبے دیکھے اس کا دامن آپ نے پکڑ لیا، جہاں چٹک مٹک کے رومال دیکھے آپ نے اس کا دامن پکڑ لیا، ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں پہنے ہیں، اسے پتا ہی نہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، جو شریعت کے احکام کو پامال کر رہا ہے۔ کوئی نماز کے لیے کہہ دو تو کہتا ہے کہ بیٹا ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب سے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ معاذ اللہ جس کا یہ عقیدہ ہو، سوچو وہ پیر بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے پیر بننا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، پیر بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کو دیکھو، جب آپ کی بارگاہ میں ایک مرید ہونے کے لیے شخص آیا تو آپ نے اسے مرید کیا، گھر گیا، اس کو نائٹ فیل پہ نائٹ فیل ہوتے رہے، احتلام پہ احتلام ہوتے رہے، 70 مرتبہ نائٹ فیل ہوا، 70 مرتبہ احتلام ہوا، نہاتے نہاتے پریشان، غسل کرتے کرتے پریشان، آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور کیا بات ہے، جب تک مرید نہیں ہوا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی، جب تک آپ کا دامن نہیں پکڑا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی، جب سے مرید ہو کے گیا ہوں نائٹ فیل پہ نائٹ فیل ہو رہے ہیں، احتلام پہ احتلام ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پیر بننا آسان نہیں ہے۔ ارے جب تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں نے تیری تقدیر کو لوح محفوظ میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ تیری قسمت میں لکھا تھا کہ تو 70 مرتبہ زنا کرے گا۔ میں نے عرض کیا میرے مولا، عبد القادر کا مرید اور گناہ کے کام کرے، عبد القادر کا مرید اور زنا کے قریب جائے، پروردگار عالم نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور پروردگار نے ان تیرے زنا کے تیرے گناہ کو رب تبارک و تعالی نے احتلام میں تبدیل فرما دیا۔ پتا چلا پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے شب و روز پہ نظر رکھے، پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی ہر عطا پہ نظر رکھے۔ ارے اے لوگوں، یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں، میرے تاج الشریعہ کو دیکھو، حضور تاج الشریعہ ایسے پیر ہے کہ خود فرماتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ایسے چمکے۔ بہت خوب، بہت اچھا پیغام ہے۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سوچ سمجھ کے دامن پکڑا کرو۔ سرکار غوث اعظم پہلے علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب علماء کی دعائیں لے کر جی دیکھیں حضور حافظ ملت فرماتے ہیں۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حافظ ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اسلام و سنیت کا عظیم قلعہ۔ مبارک پر اعظم گڑھ میں جا کر کے دیکھیں آپ، جامعہ اشرفیہ مصباح العلوم، جہاں کے فارغین کو مصباحی کہا جاتا ہے، اس پہ حافظ ملت کی دعا لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے فارغ ہونے والا یا تو مدرس بن کے نکلتا ہے یا مقرر بن کے نکلتا ہے۔ وہ عظیم ادارہ، اس کے بانی حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے 3 نمایاں طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے تدریس، مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھاتا ہے۔ سنیے گا خاموشی کے ساتھ، تقریر بہت جلدی ختم ہونے جا رہی ہے میری۔ دوسرا طریقہ ہے تصنیف، کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے تقریر، واعظ کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ اب تدریس کے ذریعے ہر آدمی تو فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، جو پڑھنے آئے گا عالم کے پاس وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک۔ کتابوں کے ذریعے ہر آدمی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو کتاب اردو یا عربی پڑھا ہوا ہوگا وہی کتابوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو 2 طریقوں سے ہر آدمی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا طریقہ بچا تقریر، واعظ کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ جی آج تقریر کو بھی ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا دیا گیا، آج تقریر کو بھی ہنسی مذاق لطیفوں کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے ان عالموں کے اوپر، میں کسی کے نام لے کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ عالم ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے،
जैसे डॉक्टर मरीज को वही दवा देता है जो उसके अंदर बीमारी होती है, तो आलिम को भी चाहिए कि कौम के अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं उन बुराइयों का इलाज करे, ना कि उन्हें लतीफ़े सुनाए। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपए नजराना सिर्फ लतीफ़े सुनने के लिए कौम खर्च कर देती है। अल्लाह आज अफसोस होता है, 1-1 लाख 2-2 लाख के जलसे हो रहे हैं। मस्जिद के इमामों की तनख्वाह वही 5,000 है। मदरसे के मुदर्रिसों को देखो 6-6 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली उन्हें। चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो, चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो। ये कौम ने हाल बना दिया। क्या समझते हो, क्या इमाम के या आलिम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके घर के खर्चे नहीं है? क्या उनके पास में और अखराजात नहीं है? लेकिन नहीं, आज हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो सोचते हैं ऐसी सैलरी मिलना चाहिए कम से कम 40-50 हज़ार हो, और इमाम साहब आ जाएं तो कहते हैं कि 5,000 बहुत है। अगर किसी चाहने वाले ने 1,000 बढ़ा भी दिए ना तो दूसरे लोग खिलाफ हो जाते हैं कि क्या जरूरत थी, 5,000 में इमाम साहब मिल तो रहे थे। ये हाल है हमारी कौम का। जो कौम अपने आलिमों के अच्छे दिन पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते। बेशक बेशक कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे दिन। अच्छा पैगाम है। याद रखो, ये मदरसे हैं, मदरसे जहां से दीन जिंदा है। तुम सोचो, जलसों से जो है हम कौम को, हर कौम को सुधार दे, नहीं हो पाएगा। जिहालत का तबादला सिर्फ इल्म से होता है जी, हक। अगर इल्म आपके पास होगा तभी जिहालत खत्म होगी, बेशक। और इल्म नहीं है तो जाहिल ही रहोगे। और एक पैगाम दे के जा रहा हूं, आज के बाद एक दिल की तख्ती पे लिख लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है अपनी अपनी बस्तियों का मुआयना करो, अपनी अपनी बस्तियों को जाकर के देखो, और देखो कहीं हमारी बस्ती में कोई आलिम परेशान तो नहीं है, कहीं हमारी मस्जिद का इमाम परेशान तो नहीं है। अरे ये गैरत होती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देती। लेकिन याद रखो, मैंने देखा है बड़े से बड़े तनख्वाह पाने वाले, 50-50 हज़ार की तनख्वाह पाने वालों को मैंने महंगाई का रोना रोते हुए देखा। कहते हैं मौलाना पता सैलरी मिलती है, कर्जे में चली जाती है, दुकान का कर्जा, खाने पीने का कर्जा, शॉपिंग में पैसे चले जाते हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन आलिमों पे ऐसा करम है परवरदिगार आलम का, रसूलुल्लाह का ऐसा फैजान है कि 5,000 की तनख्वाह पाने वाला, 10,000 की तनख्वाह पाने वाला ईशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, रात में चैन से सो जाता है, फजर में उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है कि रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अल्लाह दौलत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐ मेरी कौम के प्यारे मुसलमानों, तुम अपने आलिमों का दिल मत दुखाना, अपने इमामों का दिल मत दुखाना, किसी की बद्दुआ लेने का सबब मत बनना, बल्कि इनकी दुआएं लेने का सबब बनना। जिस बस्ती में आलिम परेशान होता है उस बस्ती में सुकून नहीं होता है। एक पैगाम दे के जा रहा हूं, अल्लाह की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मैंने बड़े से बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो अल्लाह है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अमीर बना देता है, जिसे चाहता है उसे फकीर बना देता है। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले जब कोरोना में दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन के लिए परेशान फिर रहे थे, लाखों रुपये हथेली पे रख करके सिलेंडर तलाश करते फिर रहे थे। अगर मिल भी गया तो बेड नसीब नहीं हुआ हॉस्पिटल में, कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बेड पे, घर के बेड पे ऑक्सीजन
चढ़वा रहा है, अरे कोई रक्शे के अंदर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है, जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, क्या हाल हो गया था कोरोना में, तुमने देखा नहीं? एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने देखे। पुराने शहर में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें 18 जनाजे एक वक्त में उठते थे। क्या समझते हो, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, उलमा की तवज्जो ये सब मोहब्बत से नवाजेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। बैठ जाइए, यहीं आएंगे अब। अरे वो स्टेज पे ही आएंगे, मेरे रसूल पे ही आएंगे। आप परेशान ना हो, आपके ही लिए आए हैं। इस टाइम मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर चल रही है, आप हजरात तकरीर सुने और अपने कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बहुत ही अच्छा पैगाम दे रहे हैं मुफ्ती फुरकान मदनी साहब। आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, अदम मलहूज रखें और इत्मीनान सुकून के साथ बैठें। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, बैठ जाइए। हज़रत अल्लामा फुरकान मंदरी साहब का खिताब, इस्लाही खिताब, बहुत लाजवाब खिताब हो रहा है। आप उनकी तम मसलके आला हजरत फैज़ान औलिया इकराम हजरत शब्बीर बरकाती साहिब किबला। मैं बोलूं हट जाऊं, बताएं जल्दी। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। रिजवान भाई अब जलसा सुन लो थोड़ी देर, सब आ गए अब। हाँ, बड़ी मेहनत। पीछे वालों की इजाजत है? कुछ के तो हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, कोई बीच में से एक नारा लगाए तभी मैं शुरू होता हूँ। हाँ हाँ, माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला। हज़रात अब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमारे बच्चे मदरसों में तालीम हासिल नहीं करते, आज हमारे बच्चे मदारिस में नहीं जाते। हम चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा प्रोफेसर बन जाए। मैं मना नहीं करता, मैं कोई दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ और आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो पैगाम दिल की तख्ती पर लिख लेना। मुझे डर है अगर आपने बच्चे को मदरसा नहीं भेजा, डायरेक्ट स्कूल में भेजा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सलमान रुश्दी बन जाए, कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ लेकिन बेसिक तालीम मदरसे की नहीं थी। क्या हुआ, इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा। मुझे मालूम है अगर आपकी बेटियों ने दीनी तालीम हासिल नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि तस्लीमा नसरीन की बोली बोलने लगे। मुसलमान घराने में पैदा हुई और उसी ने पर्दे के खिलाफ लज्जा नाम की किताब लिख दी। पता चला कि अगर बेसिक तालीम मदरसे की नहीं है, अगर बेसिक तालीम आपके मदरसे की नहीं है, कुरान और हदीस की तालीम आपने बच्चे को नहीं सिखाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि किडनियां बेचने वाला डॉक्टर बने, कहीं ऐसा ना हो कि मोरबी जैसे पुल पास करने वाला इंजीनियर बने। याद रखना प्यारे मुसलमानों, पहले बच्चों को मदरसा भेजो, अगर बच्चा आलिम होगा
हाफिज होगा, उसके बाद डॉक्टर बनेगा, तो वो नमाज का भी पाबंद होगा। और जब उस वक्त जब वो डॉक्टर होगा तो वो गरीबों की भी मदद करता नजर आएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा, मेडिकल पे कमीशन नहीं खाएगा, जांच रिपोर्ट वालों से कमीशन नहीं खाएगा, अल्ट्रासाउंड वालों से कमीशन नहीं खाएगा, बल्कि वो काम करेगा तो रज़ाए इलाही के लिए काम करेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसा भेजो। ये मदरसा ही तो है जो तुम्हारे लिए दीन का सुतून बन करके तुम्हारे बच्चों को आला तालीम देते हैं। तुमने देखा नहीं, अगर जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। इसीलिए सबकी नजरें मदरसे पे टिकी है कि मदरसे बंद करा दिए जाए। मदरसे बंद हो जाएंगे तो ना इनके बच्चे पढ़ेंगे, ना अपने वक्त के आलिम बनेंगे, ना अपने वक्त के मुफ्ती बनेंगे, ना कौम को शरीयत का पैगाम पहुंचाएंगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मदरसा है और एक पैगाम दे रहा हूं। अरे इस मदरसे को हिकारत की निगाह से मत देखो। अरे इस मदरसे ने वो दिया है, जब इस देश को आजाद कराने की बात आई तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या ताजुश शरीयत, ताजुश शरीयत, वो मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। ये उलमा आपको बताएंगे। मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी, जिन्होंने इल्म सर्फ की किताब इल्म सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अरे और आगे बढ़ करके देखो, तुमने देखा नहीं, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके रंगून काला पानी लेकर जा रहे थे, तो एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब हम चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो, जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो। गैर मुनकसिम हिंदो पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। आलिमों को बोरियों के अंदर बंद करके लाया गया, खोलते हुए तेलों के अंदर डाल करके फ्राई कर दिया गया। ये कौन है? ये मदरसे ही के तो पड़े हुए हैं। जब जब कौम पे परेशानी आई, कौम के आलिम आगे बढ़े। जब जब कौम परेशान हुई, ये कौम के आलिम आगे बढ़े हैं, ये मदरसे के मुदर्रिस आगे बढ़े हैं, ये मस्जिद के इमाम आगे बढ़े हैं। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने आलिमों को आगे बढ़ाओ, अपने इमामों को आगे बढ़ाओ और अपने इमामों को, आलिमों को, मुदर्रिसों को माकूल तनख्वाह दो, ताकि ये दुनिया व मा फीहा से बेनियाज होकर तुम्हारे बच्चों को इल्म दीन पढ़ाए। जब तुम्हारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम पहले तालीम हासिल करते हैं, गौसे आजम पहले मदरसा पढ़ने जाते हैं और इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम बने गौसे आजम। हम सिर्फ करामतें सुनते हैं कि मुर्दे को ठोकर मारी, गौसे आजम ने मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, लेकिन तालीम के दौर की परेशानियां देखी है तुमने गौसे आजम की। मेरे गौस फरमाते हैं, मैंने बगदाद में जब इल्म हासिल कर रहा था तो इतनी परेशानियां उठाई है। फरमाते मेरे गौस, मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, मैंने दरख्तों की छाले खा के गुजारा किया। एक दिन भूख ने मुझे निढाल कर दिया तो मैं परेशान होकर कर्फ के खंडरात की तरफ चला गया। मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उठा करके खा लूं। कहते हैं मैं जब वहां पहुंचा तो 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस फरमाते मैं वापस आ गया और मैं नमाज में मशगूल हो गया जामा मस्जिद में। कहते हैं मैं नमाज से फारिग हुआ, मेरे सामने एक मुसाफिर खाना खाने के लिए बैठा। जैसे ही वो बैठा मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ ये मुझे भी खाने में शरीक कर लेता। कहते हैं मेरे गौस, उस मुसाफिर ने कहा बेटा आओ खाना खा लो। जब मैं खाना खाने के लिए बैठा, मेरे गौस फरमाते हैं उसने मुझसे कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में? कस्बा जीलान के मोहल्ला नीब घराने का एक बेटा भी पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस फरमाते हैं उससे तुम्हें क्या काम है? कहा कि बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। अरे बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ, उनकी माँ ने मुझे
थोड़ा सोना दे के कहा था मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है बगदाद में, मेरे बेटे को ये सोना दे देना। कई दिन से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आज उनका सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये गौसे आजम है। उसने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा सोना बेच दिया है। फरमाया कोई बात नहीं, ये गौसे आजम है। गौसे आजम खाना आपने सोना पास में नहीं रखा, उसे फरोख्त करके खाना खरीद करके वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों पे ले जा करके आपने खर्च कर दिया। ये गौसे आजम है। आपने जब फारिग हो गए तो सरकार गौसे आजम ने पहले तालीम हासिल की, फिर मदरसे में बैठ करके 40 साल गौसे आजम ने पढ़ाया है। 40 साल पढ़ाया गौसे आजम ने। अब उलमा की दुआएं, हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। सरकार गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 40 साल में 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन बरकाते रजा कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्ता खींचने लगा भाई, वक्त तमाम हुआ। हाँ हसन भाई जी, सरकार गौसे आजम, कभी कभी माहौल बनता है। आप जाएंगे नहीं ये मुझे मालूम है, शब्बीर बरकाती साहब को सुने सही बगैर बात है। कहीं नहीं जाएंगे तो मेरे गौस की भी जरा दो बातें सुन लो। सुनो, सरकार गौसे आजम 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाते हैं। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो फौज थी उनकी, जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, कल जो 2 अक्टूबर निकल गई, उस वक्त भी 2 अक्टूबर थी। दुआ करें अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमाए, आमीन। जुल्म फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा, खून वो खून है, निकलेगा तो जम जाएगा, जम जाएगा बेशक। बड़े जुल्म किए थे उसने, अब उसका खुमियाजा भुगत रहा है। सुनो, तो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने कहा ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी मैदान जंग में रहे, जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां तीर तलवार और नेज़े का जख्म का निशान मौजूद ना हो। मौत बिस्तर पे क्यों आई? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे कोई तलवार ऐसी दुनिया में बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे लेकर के गौसे आजम की बारगाह में गए, कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था कि ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह कराएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो, कोई तलवार उस गर्दन को काट ही नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अंजुमन बरकाते रजा कमेटी, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। वाह वाह वाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो है सरकार गौसे आजम, वो है सरकार गौसे आजम। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आपने मदरसे में बैठ के तदरीस का मनसब संभाला, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की। फिर वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को कि हर वली की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। वो मर्तबा मिला गौसे आजम को, वो शान मिली कि आला हजरत पुकार के कहते हैं कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद
رضا قادری ہو جاؤ، باغ جنت مفت ملے گی، باغ جنت مفت ملے گی۔ میرا امام فرماتا ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت الماء کے واسطے۔ پتا چلا میرا امام کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا، میرا امام کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا ہے۔ میرا امام جانتا ہے کہ جہاں قادریت ہوگی وہاں شراب نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں جوا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں عیاشی نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں پڑوسیوں کو ستانا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہوگا۔ یہی بات کہہ کے بیٹھنے جا رہا ہوں۔ آپ کی محبت کا امتحان ہے سرولی والوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قادری بودن رضارا باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے، اور کہاں چلے گئے؟ اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے جنت چلے گئے، اور دنیا کے وہابیوں کو ایک پیغام دے گئے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو، آئے ہائے 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 ہائے، ارے بھائی خلد میں پہنچا، ارے مرشد کا شعر رہ گیا یار۔ ہاں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی، قادری بودن رضارا باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ اب علماء کی دعائیں، اب علماء کا سپورٹ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ یہ کہہ کے چلے گئے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ دادا نے کہا کہ احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ ارے جب پوتا جا رہا ہے، نواسا جا رہا ہے، ارے جب تاج الشریعہ جا رہے ہیں، رضا مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور تاج الشریعہ اذان کا جواب دینے کے بعد میں یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ۔ واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے۔ دادا نے کہا احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی۔ پوتے نے کہا، نواسے نے کہا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ ہم نے کہا اے میرے شیخ، اے میرے تاج الشریعہ، دنیا سے جانے والے بہت ہیں، کوئی ہاسپٹل کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے، کوئی اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے۔ ارے جب دنیا دار جاتے ہیں تو وہ اپنے پڑوسیوں کا یا گھر والوں کا چہرہ دیکھ کے جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ یہ ہے تاج الشریعہ۔ آج دنیا میں ان کا نام ہے، دنیا میں ان کا ذکر ہے، آج دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ ہم نے کہا میرے شیخ یہ مقبولیت کیسے ملی؟ تو آج بھی گنبد تاج الشریعہ سے آواز آتی ہے، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری۔ یہ جلوہ گری کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا تو رضاعت کے مسئلے پہ لکھا، مفتی اعظم نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا تو رضاعت کے مسئلے پہ لکھا، اور تاج الشریعہ نے پہلا فتویٰ لکھا تو رضاعت کے مسئلے پہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت کی گدی کے جانشی مفتی اعظم ہوئے، مفتی اعظم کے جانشی سرکار تاج الشریعہ ہوئے۔ پکار کے کہتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ دنیا نہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم کر سکتی ہے، نہ مفتی اعظم کا ختم کر سکتی ہے، نہ تاج الشریعہ کا ختم کر سکتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔